the part 3 of infective syndromes of CNS. What are the routes of infection? Number 1, hematogenous spread. Then we have direct spread, anatomical defect, and direct neural spread in case of herpes virus and rabies virus. Hematogenous spread is via choroid plexus to subarachnoid space. Choroid plexus is a highly vascular thing. Then direct spread from nearby structures like otitis media. Otitis media means infection of the middle ear. An anatomical defect due to surgery or trauma, and direct neural spread in case of herpes simplex virus or rabies virus. Then infective syndrome of CNS can be meningitis. Meningitis means inflammation of the leptomeninges. Leptomeninges are the inner two meninges that are arachnoid matter and pia mater, and subarachnoid space is also involved in meningitis. Then we have encephalitis. Encephalitis means brain के parenchyma का inflammation. SOL, that stands for space occupying lesion. We have focal brain abscess, that is collection of pus in the brain ventricles. Subdural and epidural empyema, that means collection of pus above the dura or below the dura. If it is above the dura, it means epidural, and if it is below the dura, then subdural. Then cystic parasitic disease, the agent for this is Taenia solium. Taenia solium causes cysticercosis, which will lead to cystic parasitic disease. In other infection, we have suppurative thrombophlebitis. Phlebitis means inflammation of vein. Suppurative means formation of pus. Thrombus means formation of thrombus, and phlebitis means inflammation of vein. So in suppurative thrombophlebitis, we have a thrombus in the vein which gets infected, and pus is also formed, due to which the vein is swollen and painful. Then we have infectious myelitis. Myelitis means inflammation of the spinal cord. And then we have toxin mediated infection. AES stands for acute encephalitic syndrome. Then the main thing that we are going to discuss is approach to a patient with probable CNS infection. कि अगर एक CNS का इन्फेक्शन हम लोग सस्पेक्ट कर रहे हैं एक इंडिविजुअल में, तो क्या करेंगे? सबसे पहले टेक प्रॉपर हिस्ट्री. उसके बाद अगर उस इंसान में हाई ग्रेड फीवर, नेक रिजिडिटी, फोटोफोबिया, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग है, then we will suspect acute meningitis. acute meningitis कब हम लोग शक करेंगे? जब उस पेशेंट में हाई ग्रेड फीवर, नेक रिजिडिटी, फोटोफोबिया और प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग है. ठीक है, तो ये नेक रिजिडिटी क्यों होगा? क्योंकि जो मेनिंजिस है उसका इन्फ्लामेशन है, और जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है दैट इज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड, और स्पाइनल कॉर्ड और नर्व रूट्स का इरिटेशन हो रहा है. ठीक है. फोटोफोबिया मतलब सेंसिटिविटी टू लाइट ऑफन अकम्पनीड बाय डिस्कम्फर्ट, पेन और आई स्ट्रेन. ठीक है. और प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग का रीज़न है कि जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो गया है. ठीक है. प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग मतलब फोर्सफुल इजेक्शन ऑफ द स्टमक कॉन्टेंट्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, और जो प्रपल्शन का डिस्टेंस है वो काफ़ी लंबा होगा, और सडन एंड अनएक्सपेक्टेड ऑनसेट ऑफ द वोमिटिंग. ठीक है. तो अक्यूट मेनिंजाइटिस में वी विल सी प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, फोटोफोबिया, नेक रिजिडिटी एंड हाई ग्रेड फीवर. ठीक है. अगर फीवर के साथ साथ वेट लॉस है, क्रेनियल नर्व का पाल्सी है, कफ और एपेटाइट कम हो गया है, तो इसका मतलब ट्यूबरक्युलर या क्रोनिक फॉर्म ऑफ मेनिंजाइटिस है. ठीक है. वेट लॉस है, फीवर तो है ही, फीवर के साथ साथ वेट लॉस है, क्रेनियल नर्व पाल्सी, कफ एंड डिक्रीज्ड एपेटाइट.
This points to tubercular or other chronic form of meningitis. Behavioral changes है, seizures है, altered sensorium. This points towards encephalitis. Sensorium is the collective sensory function of the body. मतलब इसमें कॉन्शियसनेस, परसेप्शन, सेंसेशन, अवेयरनेस, ये सब आ जाएगा. ठीक है, तो ऑल्टर्ड सेंसोरियम में कन्फ्यूजन, डिसओरिएंटेशन, ये सब होगा. तो अगर बिहेवियरल चेंजेस है, सीजर्स है या ऑल्टर्ड सेंसोरियम है, दिस पॉइंट्स टुवर्ड्स एंसेफेलाइटिस. A triad of high grade fever, focal neurological deficits and severe headache point to a focal brain abscess. Focal brain abscess का triad क्या है? High grade fever, focal neurological deficits and severe headache. So a triad of high grade fever, focal neurological deficits and severe headache point to a focal brain abscess. Examination. Look for Kernig and Brzezinski sign for meningitis. Meningitis है तो Kernig और Brzezinski sign देखते हैं. Kernig sign क्या है? क्या Kernig sign क्या इंडिकेट करता है? Meningeal irritation या inflammation. Kernig sign will indicate meningeal inflammation और irritation. ठीक है. Kernig sign टेस्ट करने के लिए lay the patient on their back with their legs straight. ठीक है, पेशेंट को लाई डाउन कर दो on their back और उनका जो पैर है वो स्ट्रेट होना चाहिए. उसके बाद पेशेंट का हिप को फ्लेक्स करो टू 90 डिग्री. पेशेंट को लाई डाउन कर दो, लेग स्ट्रेट होना चाहिए और फिर हिप्स को फ्लेक्स करना है 90 डिग्री तक. Then slowly extend the knee keeping the hip flexed. और hip flexed ही है और अब slowly knee को extend करना है. ठीक है, अगर inability to fully extend the knee है, मतलब वो इंसान अपने knee को पूरी तरीके से extend नहीं कर पा रहा है और उस पेशेंट को पेन हो रहा है लोअर बैक या लेग में और हैमस्ट्रिंग मसल में रेसिस्टेंस या पेन महसूस हो रहा है, इसका मतलब कर्निक साइन पॉजिटिव है. ठीक है, तो क्या करना है? पेशेंट को लाई डाउन ऑन देयर बैक, लेग स्ट्रेट होने चाहिए. उसके बाद हिप्स को फ्लेक्स करो टू 90 डिग्री, फिर स्लोली नी को एक्सटेंड करना है. अगर वो पेशेंट नी को कम्प्लीटली एक्सटेंड नहीं कर पा रहा है और हैमस्ट्रिंग मसल्स में कुछ रेसिस्टेंस महसूस हो रहा है, लोअर बैक और लेग में पेन है, तो इसका मतलब जो कर्निक साइन है दैट इज़ पॉजिटिव. ठीक है, ये जो ब्रेजिंस्की साइन है ये भी मेनिंजियल इरिटेशन या इन्फ्लेमेशन को इंडिकेट करेगा. इसको कैसे टेस्ट करते हैं? तो पेशेंट को बिठा दो विद देयर लेग्स स्ट्रेट आउट इन फ्रंट ऑफ देम. तो पेशेंट बैठे रहेगा और उसका जो लेग है वो स्ट्रेट रहेगा, उनके सामने स्ट्रेट रहेगा. फिर पेशेंट के नेक को फॉरवर्ड फ्लेक्स करो, चिन टू चेस्ट. ठीक है, पेशेंट बैठा हुआ है, लेग उसका स्ट्रेट आउट है और फिर उसके नेक को फ्लेक्स करना है, चिन टू चेस्ट. एंड देन वी विल बी ऑब्जर्विंग पेशेंट्स हिप एंड नीज़. अगर हिप्स और नीज़ का फ्लेक्शन हो रहा है, मतलब इनवॉलेंट्री फ्लेक्शन हो रहा है और पेशेंट के नेक, बैक और लेग में डिस्कम्फर्ट है, इसका मतलब जो ब्रेजिंस्की साइन है वो पॉजिटिव है. ठीक है, तो ब्रेजिंस्की साइन के लिए क्या करना है? पेशेंट बैठा रहेगा विद देयर लेग्स स्ट्रेट आउट इन फ्रंट ऑफ देम. तो जो पेशेंट का नेक है उसको फॉरवर्ड फ्लेक्स करना है, चिन टू चेस्ट. एंड देन वी विल ऑब्जर्व पेशेंट्स हिप एंड नी. अगर जो हिप्स और नीज़ का इनवॉलेंट्री फ्लेक्शन हो रहा है और नेक, बैक और लेग में पेन है, इट मीन्स पॉजिटिव ब्रेजिंस्की साइन. ठीक है, फिर ट्यूबरक्युलर मेनिंजाइटिस में क्रेनियल नर्व इन्वॉल्वमेंट और स्ट्रोक लाइक फीचर्स दिखते हैं. ठीक है, ट्यूबरक्युलर मेनिंजाइटिस में क्रेनियल नर्व का पाल्सी हो सकता है.
तो क्रेनियल नर्व इन्वॉल्वमेंट और स्ट्रोक लाइक फीचर्स आर सीन इन ट्यूबरक्युलर मेनिंजाइटिस। फिर लोकलाइज्ड ब्रेन एब्सेस में फोकल न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट्स को एग्जामिन करना रहता है। और इन्वेस्टिगेशन में CSF स्टडी, ब्लड कल्चर, टीबी है तो स्पूटम का एनालिसिस और MRI और CT स्कैन कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन में CSF स्टडी, ब्लड कल्चर, टीबी है तो स्पूटम कल्चर और इमेजिंग टेक्निक्स लाइक MRI और CT स्कैन यूज़ कर सकते हैं।